جن کی روحانی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں وہی دیکھ سکتے ہیں، دوسروں کو نظر نہیں آتا۔ اور میں نام رکھتا ہوں کہ خدا کے اینجل یہاں پر چاروں طرف تعینات ہیں، ہاللیلویا، اور خدا کے پاک اینجل بھی زوردار تعلیم چاہتے ہیں۔ میں بھائی سے کہتا ہوں، ایمان سے کہتا ہوں، فخر سے کہتا ہوں کہ میرا فخر میرا یسوع ہے۔ وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جیسے وہ موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ہمارے بھی ساتھ ہے، اور میں کہتا ہوں اس نے وعدہ کیا ہے جہاں 2-3 میرے نام سے جمع ہوتے وہاں پر مجھے اوپر وہ موسیٰ کی بات نہیں کرتا، اس کے نام کے لیے جہاں 2 یا 3 جمع ہوتے ہیں وہاں پر موجود ہو جاتے ہیں، اتر آتے ہیں، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ میرے یسوع نے ہم دنیا کی کشمکش، دنیا کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم اس خدا کے پیروکار تو ہیں لیکن دل سے محبت نہیں کرتے۔ لیکن عدالت ہوگی، کیا ہوگی؟ عدالت ہوگی، سب کی عدالت ہوگی، چاہے اس کو کوئی مانتا ہے یا نہیں۔ وہ صادقوں کی عدالت کرے گا، حلیموں کی عدالت کرے گا، وہ وفاداروں کی عدالت کرے گا، شریروں کی عدالت کرے گا، سب کو عدالت کرے گا۔ اور ہوں گے اپنے اندر سے یہ بات نکال دے۔ سب کو پتا ہے ہماری زندگی محدود ہے، سب کو پتا ہے کہ ہم نے ایک دن اس جہان فانی سے کچھ چلے جانا ہے، اور لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اپنے خدا کو حساب بھی دینا ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر کتنی نیکیاں، کتنے گناہ، کتنی عبادت، کتنی فرما برداری کی ہے، سب کو پتا ہے۔ یہاں پر آج سیدھے کس بات ہے؟ عدالت سارے دی ہونی، جتنے یہاں پر کوئی کہہ دے اپنا ہاتھ اٹھا کر کے میری عدالت نہیں ہوگی، چاہے خادم ہے، چاہے کلیسیا ہے، چاہے مقدس لوگ، اگر وہ کہہ دے کہ میری عدالت نہیں ہوگی تو ہم اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ عدالت سب کی ہوگی۔ سنیں، عدالت ہوگی، اس لیے خدا نے کہا، خدا کی سوچ کے کے بعد ہر ایک کے کام کے موافق اجر دوں گا۔ یہ اجر ملے گا، بھول مت جائیں۔ دنیا کے اندر رہ کر ہم بھول چکے ہیں خدا کو کہ ہماری عدالت نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ بیٹی کھڑی کھڑے ہو، ابھی اس کو بولوں گا میں تیرے منہ پہ تھپڑ لگاؤں گا، یہ ڈر جائے گی، سب کو پتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی، میں اشارہ کروں گا تو یہ ڈرے گی ضرور، اس لیے اس کو پتا ہے کہ منہ پہ جاتے ہیں، ڈر جائے۔ لیکن خدا جو ہے نا وہ بڑا رحیم ہے۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہم پر رحم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری بیٹی اور میرا بیٹا کس وقت میری طرف لوٹا ہے، لیکن جب اس کا قہر بڑھتا ہے جو نہیں لوٹتے تو وہ ہمیشہ کی آگ میں چلے جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں سے کہتا ہوں، کسی خادم نے بندے نے پوچھا کہ توبہ کا وقت کی ہے، انہوں نے کہا مرن تو ایک دن پہلا کہ یہاں پر کسی کو پتا ہے کہ میں نے کب مرنا ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے پتہ ہی نہیں کدھر مرنا ہے۔ تو خادم عقل مند تھا، سمجھانے والا تھا، اس نے کہا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مرنے کے دن کا کسی کو پتہ نہیں، سو تو آج ہی توبہ کر لے۔ ہاللیلویا، آج ہی تو توبہ کر لے تاکہ مر بھی جائے تو ہمیشہ کی آگ لگ جائے۔ اس لیے پولس رسول نے کہا تھا کہ میرا جینا مسیح اور مرنا نفع۔ اگر ہم زندہ ہیں
तो मसीह की मोहब्बत में उसके काम को कर रहे हैं। अगर हम मर भी जाएंगे हमें पता है हम मसीह में धरेंगे, हम हमेशा की आके वारसी बन के हमेशा की जिंदगी के वारिस। हालेलुया। मेरा फकर मसीह है, मेरी आस मेरा मसीह है जो हमें बचाने की, छुड़ाने की कुदरत रखता है, और मैं उस कुदरत वाले खुदा पर पूरा ईमान और भरोसा रखता हूँ। इसलिए वो मुझे कभी कभी रुस्वा नहीं करता, कभी बेदिल नहीं होने देता, कभी यतीम नहीं छोड़ता। वो हर वक्त अपना रहम वाला हाथ मुझ पर और मेरे घराने पर बनाए रखता है। इनसे वफादारी, इनसे ईमानदारी, इनसे उसके हुजूर झुकने से, जो नहीं झुकते मैंने बड़े बड़ों को देखा है, बड़े बड़े जो कहते हैं मैं बड़ा आकर हूं, उनको घमंड को तोड़ते खुदा घमंड को उनकी नस्लों को बर्बाद कर देता है। इसलिए कहता हूं अदालत सबकी होगी। कहीं पर भी रहकर गुनाह कर रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं, तो खुदा देख रहा है। अगर इस बात को सीखना तो आए जरा मेरे साथ ज़बूर 9 उसकी 8 आयत को पढ़ने, कोई भी पढ़ने में नहीं कर सकते। ज़बूर की किताब 9 बाब उसकी 8 आयत। वही सदाकत से जहान की अदालत करेगा। ये दोबारा रिपीट करें। और वही सदाकत से जहान की अदालत करेगा। और वही सदाकत से जहान की अदालत करेगा। जी। वो रास्ते से कौमों का क्या करेगा? इंसाफ करेगा। बड़े लोग कहते हैं दावे ना केस ये दुनिया, मैंने अदालत में ऐसा कर दिया, मैंने वकील को खरीदा, मैंने जज भी खरीद लिया, मैंने फलां को खरीद लिया, मैंने पुलिस वालों को इतने पैसे दे दिए, फलां कर दिया। यहाँ पर जज खरीदे जा सकते हैं, वकील खरीदे जा सकते हैं, इसलिए कि दुनिया मकारों की है। लेकिन जो ज़मीन और ज़मीन का इख्तियार रखने वाला खुदा है, वो किसी से खरीदा नहीं जाता। उसने सबका इंसाफ करना है। वो सादिक है, वो सच्चा है, वो ईमानदार है, वो ईमानदारों का बाप, वो रास्ते से लोगों का इंसाफ करेगा। कौमों को मत सोचे कि हमारा खुदा हमें ऐसे छोड़ देगा, नहीं, हिसाब ले। यहाँ पर आप अरबे पैसे से वकील खरीद सकते हैं, जज खरीद सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर बात करता हूँ जमीन पर रहते हुए आपका रुपया पैसा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हेवन के आसमान पर आपका रुपया पैसा नहीं चलेगा। वहाँ पर आपका कैरेक्टर, आपका किरदार, आपका चाल चलन जो जमीन पर रहते हुए आपने अपने अपने खुदा के मुताबिक जिंदगी को गुजारा है, वहाँ पर आपका कैरेक्टर चलेगा। अगर आपने नेकियां की है तो खुदा वहाँ पर दर्ज कर रहा है। अक्सर लोगों से कहता हूँ जब हम गाली देते हैं तो हवा में गूंजती है, जब हम खुदा की तारीफ करते हैं तो हवा में गूंजती है, फजा में चलती है। और ठंडी नजाकत वाली बातें वो अब इसके मुक्कला कर उठा कर ले चलेंगे। ये मेरी की बात है, सुने रोज। और जो हम खुदा की हम करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, वो खुदा के एंजल आते हैं, वो आसमान पर लेकर जाते हैं। वो जब जमा होते हैं, इस तरह एक स्टूडेंट पूरा साल मेहनत करता है और इम्तिहान देता है और कामयाब होता है, इसी तरह आपकी वो हम खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद पूरा साल जमा होती है। कहाँ पर? हेवन पर। और अपनी आपकी गंदी बातें
आपकी नापाकियां, आपकी सारी मर्जी बातें, आपकी सारे किरदार, आपका चाल चलन जो इब्लीस की तरफ से है, गुलाम की तरफ से नहीं, वो भी अपने आप को जमा करता है। इसीलिए सुने वो तलबात है मेरे चीजों, इब्लीस भी जब वो उस मुताबिक जमा हो जाती हैं तो उनकी एक मीटिंग होती है, उनके वक्लों की, बड़े बड़े वक्लों की एक मीटिंग होती है, और उसके मुताबिक वो असाइनमेंट जारी करते हैं कि हमने को सजा केड़ी देनी है, इसलिए कि ये अमाल जमा हो सके। क्या इसको सजा कौन सी देनी है, फिर वहां पर तय होता है, सुन लें, तय होता है, वो कहता है कि अब इसकी काम तोड़ दिया है, अब इसको एक्सीडेंट करा दिया जाए, अब इसकी बॉडी के अंदर बीमारी को छाट दिया जाए, अब इसके बदन के अंदर कैंसर जारी किया जाए, अब इसके बदन के अंदर बेशुमार बीमारी को दाखिल किया जाए। इसलिए उस बदन के ऊपर से खुदा का हाथ पीछे होता है, वहां खुदा की हुजूरी नहीं आती, और लोग ऐशो इशरत कर रहे होते हैं और एकदम से गिरते हैं। अक्सर लोग कहते हैं चंगा पर एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो, ये असाइनमेंट इब्लीस जारी करता है। सुनने इस बात को, इब्लीस सजा देता है, वो आपको खुश नहीं देख सकता, वो आपको राजी नहीं देख सकता। इसी तरह यहोवा अब्बा जो आसमान और जमीन का मालिक है, जब हम उसकी हमको स्पर्श करते हैं, मिठाई करते हैं, हम लगातार हम पर मुश्किल आए, मुसीबत आए, दुख आए, हमने अपने खुदा की इबादत ही करनी है, तो एक साल बाद आपकी जितनी आबादें, जितनी नेकियां वहां पर जमा हो जाती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, कोई बता सकता है? इतने कलीसिया के लोग बैठे, क्या होता है उसके बाद? इस तरह इब्लीस सजा देता है, आसमान का खुदा दरख्त जंग कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही है, अगर आप खुदा के नाफरमान हैं तो अदालत होगी, से आपके लिए बरकतें जारी हो सकती हैं, तो खुदा का गज़ब जारी हो सकता है। मत सोचे कि हम जमीन पर रहकर ऐशो इशरत करके चलेंगे, जमीन पर रहकर हम अच्छा खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहने और अपने खुदा की नाफरमानी करें। सबब यही है, घरों के अंदर मुश्किलातें, परेशानियां, दुख, इब्लीस इस कदर जंग लेता है कि हमें सजा के लायक ठहरा देता है। हम दुनिया के सारे काम करते हैं, जितने खुदा की बारी होती है सब ठुस इबादत होती साड़ी, और सब को पता है मजबूरी सी, बीमारी सी, भाई बीमार के पास बैठकर आप केड़ा उन्होंने रगड़ के कोई शदाई ध्यान दे तो ठीक हो जाए, खुदा की हजूरी में आएंगे तो खुदा के जो मिन्नत करेंगे। मैंने पहले कह दिया कि मुकद्दस पौलुस कहता है कि दुआ के अंदर मिन्नत, जब हम मिन्नत करेंगे